Good morning student. Today's topic is plant growth and year development. This is a BSc second year and the fourth semester topic paper थर्ड का ये है plant growth and development. Growth क्या होता है? Growth is very important of characteristics in plant. Growth सबके लिए ज़रूरत है, चाहे वो plant body हो चाहे वो human body हो. किस तरह से plant growth करता है? सबसे पहले हम terms देखते हैं, जैसे growth in its meaning, characteristic growth, condition of growth, phases of growth, देन ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट मीन्स हार्मोन्स जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, सीड डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेशन, फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन एंड सेंसेशन. These topics are very important in your course. These are all important in all question. MCQ is very important in these chapters. Like auxin, which is the promote of which part of promote growth in auxin? What is the auxin part? Gibberellin, cytokinin. That is a many question on there in put up in your exam. This plant growth generally intermediate the growth in plant not fixed to limit to the fixed pattern. Plant capacity is unlimited growth and throughout their life. Such as the called the intermediate growth. Growth जो प्लांट्स की बात एक फिक्स्ड होता है, लिमिट फिक्स्ड पैटर्न होता है, जितनी वो कैपेसिटी होता है वो लेता है. जैसे आपने अगर पढ़ा था वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं, प्लांट को उतनी ही प्लांट की वाटर की ज़रूरत होती है जितना वो कैप्चर करता है, जितनी उसको ज़रूरत होती है, वो वाटर कोफिशिएंट. देन उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो दो तरह का ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ा था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन. दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स. Then the phases of the growth, that the growth in measurable. तो for example अगर हम बात करें maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cell per hour. Here the growth is measured in terms of number of cell. A watermelon by increasing size of 350,000 times. Here the growth measured in increase in size of the cell. That is a very important line for this example. 17,500 जो न्यू सेल पर आवर बनती हैं किसमें? मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम में. और 3 लाख से ज़्यादा, 3,50,000 से भी ज़्यादा ग्रोथ करती हैं सेल किसमें? वाटरमेलन में. Similarly, growth of pollen tube is measured in the term length and growth of and the measure in terms of increase in the surface area. That is the very important topic in the growth in plant. And you know the very well the tissue, meristematic tissue is the growing power of plant. That is the which we have to call also apical meristematic tissue and the shoot apical meristematic. That is the shoot and the vascular cambium. This is the vascular cambium and in the lateral part of root apical meristematic tissue. Then meristematic tissue phase, that is the 3 points of given out. The cell divide rapidly found in both at root apex and the shoot apex. The cell are rich in protoplasm, process large conspicuous nuclei. Nuclei is the part of the division part, the cell growth, and there the cell walls are thin, celluloid, abdented, plasmidated condition. Elongation phase, the June away of the tip. Cell have the large vacuoles, cell are larger, cell wall thicker and due the dispersion. And the condition of growth, that is the factor of environment and nutrition, availability of water, light and temperature and air. That is the many parts of given out and condition of growth. ग्रोथ रेट्स की अगर बात करते हैं तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक ग्रोथ एंड द जियोमेट्रिक. राइट डाउन द L0 plus LT is equal to L0 plus RT. That is the important formula of arithmetic. अर्थमेटिक इज जो नीचे से जो फ्यू सेल्स जो ग्रो करती हैं, डिवीजन करती हैं पूरे उसमें, वो अर्थमेटिक का कहलाता है. जैसे कि LT इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टाइम में कितना, L0 इज टाइम 0 एंड ग्रोथ रेट, R इज ग्रोथ रेट. एंड दैट वी आर द रीचिंग आउट दिस पॉइंट. Geometrical is W1 is equal to W0 ERT. That is W1 is a final size, W0 is initial size, R growth and T is equal to time of growth and E is the base of natural logarithm. That is the important of you have to write, you have to note down in your notebook. This is also arithmetic. You show the
1 2 3 4 5 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3 and 2. That is the division part of 2, 3, 4, 5 and 6. This is the arithmetic growth. And then you have to see in the geometrical all cell dividing, then 2, then 4, then 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64. दैट इज द टाइप्स ऑफ. अब अगर हम बात करते हैं कि अगर प्लांट ग्रोथ करता है या ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो एक कर्व बनाता है, एक तरफ कर्व बनाता है. वो कर्व आप देखिए ये बना हुआ है जिसको हम सिग्मोइडिक कर्व कहते हैं. इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस. ग्रोथ कर्व की बात करते हैं. दिस इज द कर्व जो बनता है वो एस शेप्ड का बनता है. किस शेप्ड का बनता है? एस शेप्ड का कर्व बनता है. और सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्मोइडिक कर्व रिप्रेजेंट द इंटीग्रेट सम ऑफ द कर्व्स ईच ग्रोइंग ऑर्गेन सेल ऑफ प्रेजेंट चेंजिंग साइज ऑफ दीज पार्ट्स. मतलब सिग्मोइडिक कर्व वो प्रेजेंट करता है कि वो सम ऑफ कर्व होता है, हर एक पार्ट के ग्रोइंग पार्ट को प्रेजेंट करता है जहां जहां वो चेंजेस करने को मुनासिब होता है. अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ है स्टेडी स्टेशनरी फेज, then log phase and the size of weight of the organism and that is the time. कितने टाइम पे वो बढ़ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है. जैसे यहाँ पे 10 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, that type. Singularity of the grant period and the curve. देन उसके बाद से अगर हम बात करते हैं, अब आए ग्रोथ रीजन जोन की. तो दे आर द 3 जोन, फॉर्मेटिव जोन एंड इलोंगेशन जोन एंड मैच्योरेशन जोन. You have to learn this and this is very important definition. You write down your copy. The consist of apical portion characterized by actively dividing and the region of located just behind the formative region. ये region पे डिपेंड करता है कहाँ पे ये पहुँचता है. मैच्योरेशन जोन कहते हैं जो सबसे लास्ट होता है, ग्रांड रीजन पे जो होता है सबसे लास्ट ग्रोथ होती है. देन द डिफरेंशिएट एंड डी डिफरेंशिएट एंड री डिफरेंशिएट. प्लाज्मोटिक ग्रोथ, दैट इज राइट डाउन योर कॉपी ऑल्सो. अपने कॉपी में नोट करिए प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या होती है. प्लाज्मेटिक द सेल which is the meristematic immediate cells of cannot perform the desired function. The growth is called stage in called. The cell is formed by meristematic tissue से होते हैं, वहाँ पे immature होते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपने फंक्शन को, उसको हम प्लाज्मेटिक ग्रोथ कहते हैं. देन उसके बाद डी डिफरेंशिएट क्या होता है? डिफरेंशिएट मतलब ये होता है कि जैसे आफ्टर इन सब स्टेज के बाद से एक कैपेसिटी होती है डिवीजन की एंड बिकम्स पार्ट ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू में डिवाइड होता है. अदर सेल्स लूज देयर डिवीजन कैपेसिटी, अपने डिवीजन को कैपेसिटी को छोड़ देता है, स्पेशलाइज करता है, एक न्यू सेल को मैच्योर करता है. वही कहलाता है डिफरेंशिएशन. ठीक है, डिफरेंशिएशन ये डिवीजन कैपेसिटी को शो करता है. और डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है जब अब उसके बाद डी डिफरेंशिएशन का मतलब ये रीजन रे द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड द कंडीशन फिनोमिना स्टेमिनेट. डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, री इज अगेन मतलब वो बार बार वही डिवीजन होता रहे, उसको हम री डिफरेंशिएशन कहते हैं. जहाँ पे जो चीज़ें रीचेबल नहीं होती वो रीचेबल होके बार बार वहाँ पे पहुँचे. अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ शो कर रहा है, एक लाइन डायग्राम बना है हुआ है सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ द डेवलपमेंट इन प्लांट. दैट मीन्स सबसे पहले अगर प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं वो आपका है मेरिस्मेटिक सेल, वहाँ से वो होता हुआ प्लाज्मेटिक ग्रोथ पे आया, डिफरेंशिएशन हुआ, इलोंगेशन, एक्सपेंशन एंड स्पेशलाइजेशन एंड मैच्योरेशन. देन मैच्योरेशन सेल से सेंसेशन एंड दैट. ये एक डेवलपमेंट की बात आती है, जब प्योर मैच्योरिटी के टाइम की बात होती है तब ये एक डेवलपमेंट ग्रोथ है जो कि एक सीक्वेंस में ग्रोथ में चलता है. प्लांट किस तरह से मेरिस्मेटिक द प्लाज्मेटिक ग्रोथ का अभी आपने ऊपर पढ़ा है क्या है. इमीडिएट इमेच्योर सेल्स कैन नॉट परफॉर्म डिजायर टू द फंक्शन इन द स्टेज इज प्लाज्मेटिक ग्रोथ पे करता है. डिफरेंशिएट, मैच्योरेशन एंड मैच्योर सेल, एंडेंसेशन एंड देन
दैट। अब आते हैं देन प्लांट ग्रोथ रेगुलेट, जिसको हम PGRS बोलते हैं, यानी कि फाइटो हार्मोन्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइटो हार्मोन्स। हार्मोन्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नेचुरली इन हायर प्लांट विच इज ग्रोथ अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट साइट फॉर अवे फ्रॉम द प्लेस इट्स ओरिजिन एंड रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब प्लांट ग्रोथ के रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है वो है फाइटो हार्मोन्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है नेचुरल इन हायर प्लांट्स में, अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, और अवे फ्रॉम द प्लेस्ड इन ओरिजिन। दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड रिक्वायर्ड हर जगह पे ये पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बातें फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहला फीचर्स है ऑर्गेनिक इन नेचर। फर्स्टली राइट डाउन and required in very small amount, use of the reaction, exert an effect in site and which is away from the place their origin, mainly control physiological activity which are directly related to growth of plant. Then PGR are divided into main groups. Growth hormone promoters, that mean auxin, gibberellin and cytokine। जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उसमें आपके 3 हार्मोन्स आते हैं, auxin, gibberellin, cytokinin। Auxin, gibberellin, cytokinin, growth promoters, and growth inhibitors, ABA, abscisic acid, and ethylene. You have to already know that these phytohormones in your intermediate exam. This is a very few concept in your intermediate exam, and then अब आप इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सिन की बात करते हैं, ऑक्सिन नाम के एक फर्स्ट पार्ट ऑफ हार्मोन्स को इसको डिस्कवर किया था FW वेंट ने इसको फिर और इसमें ऑब्जर्व किया। ऑक्सिन प्राइमरी एंड मेन ग्रोथ प्लांट होता है, सेल इलोंगेशन करता है, कहाँ की, स्टेम की। स्टेम से जहां से कटिंग कर दो, कटिंग करने के बाद जब सेल आगे की ओर बढ़ता है, आगे से कट करने पर बढ़ता है एपिकल मेरिस्टेम, वहां पे जो हार्मोन्स वर्क करता है उसको ऑक्सिन कहते हैं। वहां पे जो ऑक्सिन प्रमोट करेगा वो क्या होगा, ऑक्सिन। यू हैव टू राइट डाउन जो ग्रोथ हार्मोन्स में ऑक्सिन प्रेजेंट करेगा वो है। दैट मीन देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कैसे, ऊपर 2 प्लांट को दिए गए हैं। ये है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये है एविना कॉलिपिटी, जिसको सबसे ऊपर के पार्ट्स को होता है, ये लाइट इफेक्ट किया, यहाँ पे एपिकल कैप को रिमूव कर दिया गया, काट दिया गया और रख दिया गया। अब इसमें क्या गया, इसको अगर ब्लॉक में रखा गया, ऊपर से इसके उसमें क्या कहते हैं, अगर ब्लॉक को प्लेस कर दिया ऑटोमेटिकली और लाइट में अंदर, तो जहां से भी कर्व लाइट पे वो होगा उधर के अदर प्लांट से वो उधर ग्रो करने लगेगा। तो वहां पे जो हार्मोन्स वर्क करेगा वो आपका ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन क्या होगा, दैट मीन्स देखिए एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, केमिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज यू नो द ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ट्राईफाइटोफॉन एंड इंडोल पायरुविक एसिड पाया जाता है और इंडोल एसिटिक एसिड बनाता है, जिसको ही हम ऑक्सिन। राइट डाउन दिस, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑक्सिन? Auxin is chemical is indole acetic acid. Indole acetic acid. This is the chemical formula is CH2C and single bond COH. Very important. And MCQ is question is also on there. And the acetic acid is derivative in the amino acid tryptophormones का ये derivative है और इसको नोट कर लीजिए कि ऑक्सिन। अब समझ में आया आपको कि ऑक्सिन कहाँ पे बिलोंग करता है, ऊपर की सेल की ओर से डिवीजन करता है और लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वहां पे जो हार्मोन्स ग्रो करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन इज वेरी सेल इलोंगेशन, दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन एंड द पार्थेनोकार्परी, रेस्पिरेशन, कैलेक्स फॉर्मेशन, अदर फंक्शन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। What is the function of cell elongation? Apical dominance, root initiation, prevention of abscission, parthenocarpy, respiration and calyx formation and other function. Other function में weedicides हैं, उनको वो करने के लिए ऑक्सिन आर ऑल्सो यूज टू वेडिसाइड कंट्रोल। वीड्स को ऑक्सिन का हार्मोन का छिड़काव करते हैं जिससे वो वीड्स खरपतवार जो होती है वो निकल जाते हैं। अब हम दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं, वो है आपका डिस्कवरी ऑफ जिबरलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीडलिंग
डिजीज को कंट्रोल करता है। ये ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई द सीडलिंग इन्फेक्टेड द फंगस, जहाँ पे सीड्स को अच्छे से ग्रोथ नहीं, वहां पे जो लैक ऑफ हार्मोन्स होता है वो आपका होता है जिबरलिंस हार्मोन्स। जिबरलिंस हार्मोन्स के उससे ये वजह से ये सीड ग्रोथ नहीं कर पाता है। दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट द gibberellin GA3. There is a G1, G2, G3. There is many more of chemical formula. You have to see GA1, GA2, GA3, GA4, GA50 तक ये अपना एक केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। अब इसमें अगर फिजिकल इफेक्ट्स में अगर हम जिबरलिन की बात करें, इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड्स, ब्रेकिंग एंड डॉर्मेंसी ऑफ प्रोमोटिंग ऑफ जर्मिनेशन एंड डॉर्मिनेसिंग ऑफ बड्स, then inhibition of root growth, bolting of the flowering, parthenocarpy, fruit development, light inhibition, cell stem growth, and T deoxigenase of enzyme alpha amylase and replacing vernalization requirement. ये सारे जर्नल इफेक्ट हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएट इन बिटवीन ऑक्सिन एंड जिबरलिन। ऑक्सिन इज केमिकल ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स और ये जिबरलिन इज अ केमिकल हैव द जिबरलिन रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रिप्टोफैन का एक पार्ट होता है। ऑक्सिन कॉजेज एपिकल डोमिनेंस, इज नो सच इफेक्ट, कोई सेल पे एपिकल पे इफेक्ट नहीं करता है। ऑक्सिन डू नॉट कॉजेज बॉल्टिंग, जिबरलिन प्रमोट द बॉल्टिंग and it promote the callus growth and the initiation। ये लिटिल सच रोल करते हैं, पूरी तरह से ये नई टिश्यू कल्चर को डैमेज करते हैं। ये हेल्प करता है ऑक्सिन रूट इनिशिएशन में, ये करता है, थोड़ा बहुत रूट करता है, बाकी ये नहीं करता, ये सिर्फ सीड पे इफेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट एंड बेसिपेटल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ जिबरलिन एंड बेसिपेटल वेल एस्कोपेटल। ये आपका है, आज आपको इतना ऑक्सिन और जिबरलिन के बारे में बताया है। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक केमिकल फॉर्मूला और आप इसको करिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी गोइंग ऑन टुमारो।